Why sarees? वो जब तक पता नहीं चला जब अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं आ गई. White sarees. Right. Who taught you how to wear a saree? फैशन एंड आर्ट डजंट नीड बाउंड्रीज. Yes. तो पहले तो आप साड़ी पहनते थे, अब मैक्सी भी प्रमोट करने लग गए. I mean, have they judged you for what are you wearing? No, men can't wear sarees or women can't wear suits. Covering your body is better than showing it off. Same-sex marriage is also illegal, sir. So how do we change? How do we transition that part of India into this? होमोसेक्सुअलिटी का टैग लगाते हैं. You rightly said, you said rules and regulations. Don't you think that is also contradictory because that is also man-made? क्योंकि हम गे हैं हमको निकाल दिया गया कि being gay doesn't mean that you're sleeping around with different men every day. What do you think is the difference between spirituality and religion? घर के बाहर जय श्री राम के झंडे लगाने से और गाड़ियों के पीछे ईश्वर के नाम लगाने से आप हिंदू नहीं हो जाते. अरे शिव जी भी तो भांग पीते थे. भगवान बनना, भगवान के साथ अपने को कंपेयर करना मूर्खता है. Because there's so much politics, there's so much drama, there's so much favoritism. कंसेप्ट है ना, मुंबई के अंदर बहुत कॉमन है. Gay, being lesbians, the reason why a lot of negativity also attracts them. But what does the Shastra say? मैंने मूवी में बोला होता ना, हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ. इन द मूवीज दे आर गेटिंग ब्लॉकबस्टर्स एंड देन करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं. What is the path for homosexuals? क्या किसी को गाली देना इंस्टाग्राम पोस्ट पे सही है? What is the definition of a brave new India? आप जब वो जेंडर आइडेंटिटी के टैग को यहाँ से हटा के अपने कार्य में दिखाएंगे ना, उस दिन बदलाव की नींव रखी जाएगी. मुझे तो कहते थे सूती साड़ी के अंदर आता है, मुझे तो कहते थे निरूपा रॉय रखता है. उन्होंने मदिरा पान करके अपने घरों को बर्बाद किया है, फिर मंदिर में चले जाएंगे. Good evening, guys. Welcome yet to another episode of The Heartful Show, where art meets the heart. Today we have a guest who does not fit in boxes. He's an artist, he's a designer, he's an inspiration, and he's a lot more. He's been a sensation on Instagram and influencing people on a lot of topics like lifestyle, fashion, art, LGBT community, and a lot more. So here we are welcoming the one and only Karnvik sir. Hi sir, Namaskar. namaskar. How are you? Thank you so much for inviting me over to this beautiful palace of yours and to this beautiful art gallery which you're running. Thank you, sir. It is a pleasure. I mean, it was a shock when you said yes to us. So I think I can't thank you enough for being part of this community. Thank you so much for inviting me over. I'm really enjoying the part. I am glad that you are. And we're going to have really unfiltered, heartfelt conversations today. It's going to be a lot about art. We're going to talk about controversies. We're going to talk about your life, how your life has been, and how your journey has been ever since. My whole life is unfiltered, I would say. Yeah. So I never put filters. कभी कभार इंस्टाग्राम पे यूज़ करते हैं गोरा दिखने के लिए. Otherwise, it's all plain white. I can see. And I'm going to start with this itself. Why sarees? How did sarees come into the picture? When I was quite young, I never thought that I'll wear saris. Yeah. I was always like, saris, so as a male figure, I cannot wear. It was in London, and it was London Fashion Week, where I started my journey from. Oh, so wow, I wore a dhoti, mund, Wow. with a blazer, Yeah. and it was an amalgamation of Indian as well as Western culture. And I wore a shawl with it. Okay. Yeah. Then I decided I won't wear sari ever in my life. But people accepted it. People welcomed me, wholeheartedly. Then I decided that, ठीक है. But I don't think you're someone who gets, affected by validation. Not at all. I think you've never, initially maybe. फिर But भारत आने के बाद किसी ने, एक फ्रेंड ने एग्जीबिशन लगाई थी एक जगह पे जयपुर में, और मैंने आई वाज वेयरिंग माय कुर्ता एंड आई वेंट देयर फॉर द एग्जीबिशन. ही सेड दैट व्हाई आर यू इन अ कुर्ता, व्हाई डोंट यू वेयर अ साड़ी. एंड उस समय भी सफ़ेद साड़ी थी, तो इट वाज मेखला चादर फ्रॉम असम. okay. एंड ही वाज लाइक पहन लो कुछ नहीं होगा. तो मैं था, मेरे 2-4 और दोस्त थे, सारे कम्युनिटी के थे. तो उसने पहना के खड़ा कर दिया और तस्वीरें खींच ली. वो जब तक पता नहीं चला जब अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं आ गई. Fantastic. And I was like, I think I'm made for this. And that was the day I never looked back. And No, I started mean, I wearing think sari. it speaks volumes. More than words. I think your outfit, your attire speaks to the community and speaks to a lot of people out here. But you said white sarees. Is there significance of I think white पहली बात तो एक तो साड़ी एक ऐसा गारमेंट लगता है मुझे जो कि मुझे अपनेपन से महसूस कराता है. वो माता का आंचल, वो प्रेम, वो सद्भावना दिखाता है कि शायद मुझे और किसी गारमेंट की आवश्यकता ही ना हो, कि मैं डेली आई कैन वेयर माई
six and a half yards sari and walk out anywhere in the world. Hmm. And I can hop in sari, I can enjoy in sari, I can eat in sari, I can sleep in sari, I Yeah. can dance in sari, I can wear a sari in less than 30 seconds. Yeah. Right. Who taught you how to wear a sari? Nobody. No, are you serious? Nobody. Okay. And आपने अगर शायद नोट किया हो कि नहीं किया हो पता नहीं, बट मेरे इंस्टाग्रामर्स काफ़ी नोट करते हैं, मेरे प्लीट्स उल्टे होते हैं Okay. हमेशा Yes, सारी के, yes, yes. कि उल्टा हाथ चलता है Yes, तो sir. उल्टे ही प्लीट्स होते हैं. बट अगेन फैशन एंड आर्ट डजंट Yes, sir. नीड बाउंड्रीज, Yes, sir. राइट? Totally. इसीलिए और फिर सफ़ेद रंग का कंसेप्ट वहाँ से आता है कि मुझे कभी रंगों में बनना भी पसंद नहीं आया. सफ़ेद रंग तो मेरे जीवन में एक ऐसा रंग है जो मेरे नेचर की तरह है. आप जिस प्रकार के जिस तरीके के लोगों से मिलते हैं, जैसे सफ़ेद रंग किसी और रंग से मिलता है तो उस रंगीन कलर में आ जाता है. सिमिलरली दैट इज़ wow. माई नेचर. When I meet, for example, I'm meeting you, you're quite young to me. Yes, sir. I'll come down to your level, I'll stoop down to your level, and I'll become your friend. If I meet somebody who's very senior, I'll stoop up to that level and I'll try to, match their color date, and I'll say that कि ठीक है कि आपकी तरह होने की इच्छा करते हैं. तो equality उस समय आ जाती है Is आप में. is part of तो your सफ़ेद life. रंग फिर उसी को And I दर्शाता है. think white speaks, I mean, a lot of things. I mean, because white is a neutral color. प्योरिटी. And, yeah, it's मेरे लिए प्योरिटी है, जिस तरीके से अंदर से हो उस तरीके से बाहर हो. और ये जो एक आंचल है ना, अगर इस पे हल्का सा दाग लग जाता है तो आप शायद उसको पहनना भी वाजिब नहीं चाहोगे. समझेंगे. सिमिलरली आपका नेचर, आपका चरित्र भी इस प्रकार होना चाहिए जो बेदाग रहे हमेशा. Bilkul sahi. And you've been an inspiration when we talk about gender fluidity. So I mean, have people actually asked you? I mean, have they judged you for what are you wearing rather than why are you wearing it? काफ़ी समय, बट मैंने कभी उनके जजमेंट से हार नहीं मानी. मैं अपने कम्युनिटी के मेंबर्स को काफ़ी देखता हूँ, वो बहुत निराश होके दे टेक सच स्टेप्स विच आई कैन नॉट इवन थिंक. मेरे तो चाकू से हाथ में कट लग जाता है, मेरे को तो इंजेक्शन लगाने में डर लगता है डॉक्टर के पास जाके. सो जो बच्चे कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं और जिनसे माता पिता बाद में दुखी होते हैं. आई थिंक आप एक जीवन में आए हैं, ठीक है, ताने मिलते हैं, आप इस कम्युनिटी से हैं, लोगों को समझने में भी समय लगेगा. इसको निराशा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत डुबो देती है. आई डोंट थिंक दैट पीपल आर मेड फॉर दिस. आई थिंक वी आर सच स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग्स. आई थिंक जैसे विमेन है ना, वो एक बच्चा बेयर करती है, हम लोग पूरी सोसाइटी को बेयर करके चलते हैं. हम लोगों को बहुत ताने सुनने पड़ते And हैं. I also, I think I want to add to this that gender is a man-made concept. एग्जैक्टली. I mean, I mean, of course, when we came onto planet Earth, we were, of course, men and women. But Born the concept with of a sex. Yes, we were born with a sex. We have different organs altogether when we talk about our genitals as well. But when we talk about fashion or when we talk about clothing, that was something which was made by men. Exactly. Made by men as in made by humans. So, I mean, I don't know how that came into the picture as a form of judgment. So, I mean, ऐसा तो कभी सदियों साल पहले ये नहीं बोला जाता था कि no, men can't wear sarees or women can't wear suits. Women also wear suits in today's time. I'm talking about formal suits. So, धोतीज there's nothing तो wrong with पहनते that. थे पुराने ज़माने में लोग, है ना. Yes, sir. और साड़ीज़ भी कोई इस तरीके से थोड़ी चालू हुई थी. Yes, sir. वो तो रविंद्रनाथ टैगोर के टैगोर टाइम जी ने. पे कितने पुराने समय में बस एक ड्रेपिंग फैब्रिक था. आज उसको ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट का नाम दे दिया है. अदरवाइज वो जस्ट अ पीस ऑफ फैब्रिक. I agree. एंड व्हेन यू आर कवरिंग योर बॉडी ना एनी विच वे, तो कवरिंग योर बॉडी इज बेटर देन शोइंग इट ऑफ. Showing it off, I agree with you. And I also I want to emphasize on this point. I want your opinion in it. Why I mean, again, it's a controversial question, but why are women allowed to wear suits like men do, formal suits like men do, whereas men are not allowed to do the मैं तो exact ये opposite? क्वेश्चन उन्हीं लोगों से पूछना चाहूँगा जो इंस्टाग्राम पे एडवोकेसी करते हैं दैट आपने साड़ी क्यों पहनी. आप घर में देखो, आपकी बहन जब अगर एक सीईओ है कंपनी की, Exactly. तो शायद वो ब्लेजर एंड सूट में जाएंगी, है ना. बिल्कुल आप सही. उनको बोल दो साड़ी पहन के पहुंच जाएं, शी विल नॉट गो. व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड देन यू कैन वेयर व्हाटएवर यू वांट टू एंड देन यू कैन शोकेस योर आइडेंटिटी एज इक्विवेलेंट टू द मैसोचिस्ट Opposite मेन, gender. राइट, देन व्हाई नॉट अस. Yeah. एक साड़ी ही तो है यार. मैं तो ये समझता हूँ
क्या है, ये कपड़ा ही कपड़ा ही तो है। आप उस कपड़े से इंसान को जज करना जब छोड़ देंगे ना, भागवतम क्या कहती है, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर जस्ट अ सोल. Start looking at the soul of human being rather than finding differences from the color, gender, identity, clothing. Please, for God's sake, start looking at the soul of human being. Beautiful. Yeah, I totally agree. But have you had any such incident? Like I know one of these incidents about the JLF incident, the Jaipur Literature Festival incident. What happened there? Like out of the blue, someone just popped up. Exactly. वो तो मुझे भी नहीं पता था, वो बहुत वायरल कर देंगे मुझे. प्रख्यात जर्नलिस्ट होंगे शायद, फेसबुक पे उन्होंने मेरा वीडियो अपलोड कर दिया था कि आप साड़ी क्यों पहनते हैं, और मैंने शास्त्रों का एग्जांपल दिया था. हालांकि यस दे वर ट्रांसजेंडर्स, बट आई थिंक जब रनल्ला बने थे अर्जुन, और जब शिखंडिनी थी, या फिर जो भी कैरेक्टर्स के मैंने नाम लिए, मैंने राम जी के बारे में बताया था उसके अंदर, बट मैंने ये नहीं बोला था जो लोगों के प्रश्न होते हैं उसमें कि राम जी ने साड़ी पहनी थी. मैंने ये कभी नहीं बोला था, मैंने कहा था धोती पहनी थी और ऊपर पटका था. आज भी अगर आप इस वीडियो को उठा के देखें तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसक्रिप्शन दिख जाएगा उसमें. आप धोती जैसे गारमेंट को आप साड़ी से कंपेयर कर रहे हैं, है तो वो यही 6.5 मीटर का फैब्रिक, नीचे से ड्रेप करते हैं तो वो धोती बन जाती है, इसको पल्लू ऊपर किया तो साड़ी बन जाती है. तो मेरा तो यही मानना है, आप चलो हमारे ठाकुर जी को देखें, कृष्ण है ना, कितने ब्यूटीफुल ज्वेलरी पहनते हैं, एंकलेट पहनते हैं, है ना. मैं उनको जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस में नहीं ला रहा हूँ मैं, है ना, बट आई जस्ट वांट टू से दैट व्हेन यू प्रे कृष्णा फॉर बीइंग सो bedecked इन ज्वेलरी, व्हाई नॉट इफ अ मैन वॉक्स आउट यू नो बीइंग इन अ सखी और अ गोपी अवतार. खैर हमारा तो गोपी बनने की औकात भी नहीं है, तो लोग गोपी अवतार भी कहते हैं, गोपी स्वरूप कहते हैं, बट आई थिंक आप उनकी चरणों के धूल बन जाएं वही काफ़ी होगा. I totally agree. I mean, there's nothing against. I can say against this. But yeah, like if I talk about the Shastras as well, like all gods and goddesses, जब आप राम लीला देखने जाते हो, अभी भी देखने जाते हो, so you see all these men decked male up, creating, male yes, creatures male are decked into up, wearing females, jewelry, yes. wearing earrings, wearing a tika, a mukut as well. So that is also jewelry. So Exactly. if that can happen in a particular season, why can't we normalize that and have it forever? मैं ये सोचता हूँ जो कम्युनिटी के हमारे लोग हैं, उनको जीवन जीने का राइट है, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी का टैग लगा कर नहीं. व्हेन यू हैव दिस, आप स्ट्रेट हैं, आप सड़क पे जाते हैं, ये तो ना बोलते हैं मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है, मुझे आज़ादी चाहिए. आप सड़कों पे जाके अब, या फिर अगर मम्मी ने अगर मना कर दिया कि ठीक है इस लड़की से बात नहीं करनी, आप प्रोटेस्ट पे थोड़ी उतर आएंगे. मैं गे प्राइड्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो जब वो किसी और का स्वरूप ले लेता है तो वो प्राइड मार्च जो कि यू नो जहाँ से चालू हुई है, वहाँ से प्रतिरूप उसका बदलता रहा है. मैं चाहता हूँ लेट इट बी वेरी ऑथेंटिक. आप अपनी ओरिजिनलिटी के लिए लड़िए, आप अपनी सेक्सुअलिटी को टैग लगा के मत रखिए ऊपर. आप पढ़ाई करें. How would you fight? मैं ये कहता हूँ ठीक है LGBTQ सोसाइटी के हैं, आप एजुकेट होइए, आप पढ़ाई करें, आप धन लक्ष्मी कमाएं, आप समाज में इज्जत कमाएं. Sorry to interject you. I want you to keep talking, but I just want to. I agree with you, and this is something which I've been saying ever since. But I think specifically in a country like India, there's a fine line between civic sense and education. I'm pretty sure that people of a certain background, a well-to-do background, are educated, but they don't have that. I've also seen those people making fun of gay people. I've also seen them making fun of transgender people. So I think it's more to do with the mentality and the civic sense rather than education, because I think a fair number of people are educated. It is just their mentality which messes them up. So I mean, how do I cater to this situation? I'll bring about one situation. What happened? I was at a red light. कांच नीचे किया, एक ट्रांसजेंडर आई, ताली बजाई, उसने मुझसे पैसे मांगे. मैंने कहा पैसे चाहिए, काम चाहिए. उसने कहा तू काम देगी क्या? आई सेड, आई रीइंफोर्स्ड इट एंड आई सेड पैसे चाहिए या काम चाहिए? उसने कहा काम. मैंने अपना कार्ड दिया और आज जयपुर के प्रख्यात, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जयपुर के प्रख्यात कंपनी के अंदर एज अ सीनियर कंसल्टेंट वर्क कर रही हैं.
and she has completely changed her persona. Whenever she I- walks along, yeah. she's a very dear friend of me now. Whenever she walks along, I can see her confident. वो इतनी confident हो गई है अब, because मैं वही चीज़ बताता हूँ, एजुकेशन, मनी एंड समाज में इज्जत, ये आप अपने आप कमाते हैं. कमाते हैं, बिल्कुल सही. मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर भी इस बात को चेंज करना चाहिए. बेचारे ट्रांसजेंडर्स के लिए काम मिलना बहुत मुश्किल बात है. आप काम दीजिए, वो करेंगे, वो उतनी मेहनत करेंगे जो शायद कोई और ना कर पाए. आप कम्युनिटी के लोगों को एक तिरस्कार की नज़र से या एज अ डिग्रेडेड थर्ड कैटेगरी, It's a थर्ड different जेंडर बोल caste, के, yeah. है ना? I think they've segregated them वी and made एस टी it एस into- सी सीनियर, ऊपर नीचे, जातिवाद, लोगों में रंग-भेदी टिप्पणियाँ हम ही लोग तो बना रहे हैं. humans at the end of आप the day. मत क्रिएट करिए ना ऐसी बाउंड्रीज. जीवन में वैसे ही बहुत उलझने हैं, Yes, sir. तो हमें उलझने सुलझाने का काम करना चाहिए या उलझने क्रिएट करने का. गवर्नमेंट इज़ देयर टू हेल्प अस. और मुझे भारत के न्याय पे पूर्णतः विश्वास है. जब सेक्शन 377 आ गया, आया, आया था. जो कि जब सेक्शन 377 बना था और यू नो जब उसकी Enforce हुआ था. नींव रखी गई थी, तो जो बातें उसमें लिखी गई कि एक कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन Man, टू yeah. पीपल इज नॉट अलाउड अनलेस इट इज डन टू बिगेट चिल्ड्रन. ठीक है, अब विदेश में तो वो हटा दिया गया. जिसने बनाया था वो तो लागू करके छोड़ के, वो तो वहाँ तो गे प्राइड्स हो रही हैं. भारत में ही उसको टैबू की तरह देखा इंडिया जा में रहा तो है. सेम सेक्स मैरिज इज आल्सो इलीगल, सर. आई विल कम टू दैट. मैरिजेस तो हैं, लेकिन वही है कि प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है. फिर प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलेंगे तो फिर दो इंसान जीवन में जी के साथ कैसे रहेंगे? नहीं, but even same sex marriage is not legally. You can't go to a court and actually टू रजिस्टर register it. You can't register it. That is exactly what I'm saying. So how, I mean, and we are talking about a progressive India. I mean, a progressive India where a person like Karan Vig also flaunts his saris, and it's so beautiful to see, people praise you. But when we talk about, this is one side of India, and then we also are talking about the other side of India. So how do we change? How do we transition that part of India into this? मुझे लोग बोलते हैं कि अगर तुम विदेश में जाके पढ़ाई ना करते, हाँ. या तुम अमीर ना होते ना, मैंने कहा इसमें अमीरी गरीबी नहीं आती. कुछ बात नहीं है. आप में क्वालिटी होनी चाहिए, आप में क्षमता होनी चाहिए, आप में सहन शक्ति होनी चाहिए. आप सहन तो करना सीखिए, आप लड़ना सीखिए. आप जब वो जेंडर आइडेंटिटी के टैग को यहाँ से हटा के अपने कार्य में दिखाएंगे ना, उस दिन बदलाव की नींव रखी जाएगी. आप बदलाव चाहते हैं अपनी जेंडर आइडेंटिटी को प्रमुखता देकर, सॉरी, you are doing a very wrong thing. No, I totally agree with you. People should know you by the work you do. I teach in a school in a very small district of Jaipur. You're an English teacher. हाँ. Yes. So I started as a junior teacher. Class 5th को पढ़ाते थे. आज 9 साल हो गए. Now I'm the head of the department of the same school in English, where I've employed 5 more teachers under me. Yes. And Can they you are please all tell from the us community. About that, yeah, I mean, how did you've employed 5 more people who are gay as well? So how did that journey? I mean, it's so beautiful because schools need to welcome that. And how did that happen? यही बात होती है. आप लोगों की मानसिकता को बदलेंगे अपने काम को दिखाकर, और उनके अंदर आप लोगों को एक ऐसी भावना जागृत करनी होती है जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, जिसे कहते हैं ट्रस्ट. Yes, sir. If I would have done something silly being in educational department, it would have ruined my image. Yeah, of course. आज 9 साल से एक ही जगह पे टिक के काम करना कोई इंसान नहीं कोई कर इंसान पाता नहीं है. कर पाता, sir. Whereas I have got so many teachers and they're all good because they know they want to educate children. When I used to go earlier and I used to dress up in this way, कई कबार किसी ने मुझे बोला कि ये ऐसा है वैसे हैं, बच्चे देख के हंसते थे. I used to get upset. But then parents gave me acceptance. मैंने पहला साल पूरा किया था, बच्चों को इतना अच्छा रिजल्ट दिया. जिन बच्चों को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, they started speaking fluently. उनके पेरेंट्स ने ये बोल दिया, अगर करण सर स्कूल से निकल जाएंगे, हम हमारे बच्चों को निकाल लेंगे. Beautiful. वो प्यार. No, but such, yeah, I mean, such, wise words from people like them as well give you the motivation to fight as well. एग्जैक्टली वो And I प्यार क्रिएट करना, यार बॉन्ड तो बनाना बहुत सीखिए. बनाना सीखिए. मैं बार बार इसी बात को प्रमुखता देना चाहता हूँ कि
जेंडर आइडेंटिटी को मुद्दा ना बनाए, है ना? नहीं, बट आई थिंक ऑन द कॉन्ट्री, सॉरी, मुझे तो लगता है मुद्दा बनाना चाहिए. डोंट यू थिंक जेंडर न्यूट्रलिटी शुड बी अ नहीं सब्जेक्ट नहीं, इन मेरा मतलब है उसको नेगेटिव वे में उस इम्पोर्टेंस से मत ले आओ कि क्योंकि हम गे हैं हमको निकाल दिया गया, क्योंकि हम ट्रांसजेंडर हैं. आई अंडरस्टैंड पीपल नीड टू बी एजुकेटेड फॉर दैट, लेकिन उसको रोने से आप अपने आप को ही कमजोर साबित कर रहे हैं. अग्रीड. आप गलत कदम उठा रहे हैं. इसका मतलब दिख रहा है जो लोग आपको बोलना चाहते थे, जो लोग आपको महसूस कराना चाहते थे, आपने कर लिया. नाउ दे आर clapping behind your backs because they have achieved what they wanted to, and then you have made them, you have proved them that yes, I was a loser. Sorry, the community people are very strong. They should never lose their heart. They should be strong enough and fight back. Fight back by being educated. This is what my always one of the most important point is, the perspective of studying, being educated, और community के लोगों को इतनी पढ़ाई करनी चाहिए IAS RAS बन के निकले. यस सर, एग्री. तो ये जो सारे जो कमेंट करते हैं ना ट्रोलिंग, जिप अप हो जाएंगे एक बारी में. नहीं, बिल्कुल agreed. And I think a pinch of exposure is also needed, because I mean that is, I mean, if we talk about education again, of course even the generation above me is also educated, but now I mean I'm going to give you a hypothetical situation. I mean I have friends, okay, who are gay, but they still till date don't have the confidence to go up to their parents. One did, and then he got chucked out of his house. He got disowned by his own parents. So the other ones don't even have that strength in them to actually go and talk to their parents about it. बाहर वाला को तो छोड़ दो. I mean, forget fighting with the word when you can't even fight in your own household. मैं किसी अमीर खानदान से बिलोंग नहीं करता. Yes sir. मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है. मेरी फैमिली वाले भी मुझे चेकआउट कर देते. वो कॉन्फिडेंस बनाया है ना पेरेंट्स के अंदर, वो इमेज क्रिएट करी ना कि बीइंग गे डजंट मीन दैट यू आर स्लीपिंग अराउंड विद डिफरेंट मेन एवरी डे. बीइंग गे कैन आल्सो मीन कीपिंग योर सेक्सुअलिटी एट द बैक एंड वर्किंग फॉर योरसेल्फ. मैंने क्या किया? क्रॉस ड्रेसिंग ही तो करी है ना. ठीक है, आपको स्त्री से अट्रैक्शन नहीं है, पुरुष से अट्रैक्शन है. इससे दूसरे को क्या लेना देना? आपने गारमेंट ही तो चेंज किया है ना. आपने अपने ओरिएंटेशन ही तो चेंज किया है. आपने अपने माता पिता की आंखों में कॉन्फिडेंस गेन किया है कि मेरा बच्चा गलत राह पे नहीं जाएगा. दैट्स इट. दैट इज व्हाट यू नीड टू क्रिएट, एंड ऑल द थिंग्स आर सॉर्टेड. एंड वन मोर थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी स्पिरिचुअल. आप ईश्वर के दर पे जाके देखो, किसी भी धर्म के हो. Are you religious or are you spiritual? ये कल भी किसी ने मेरे से पूछा था. आई एम वेरी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एज वेल. रिलीजियोसिटी बिकॉज आई फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्पिरिचुअलिटी बिकॉज मुझे पता है एक एनर्जी है ना, which is running the whole cosmos. But now if we even talk about this, religion, as you rightly said, you said rules and regulations. Don't you think that is also contradictory, because that is also man-made? ठीक है, अगर मंदिर में कहा जाता है स्वच्छता से अंदर आए, तो क्या वो आपके लिए हानिकारक है? नहीं, हानिकारक. मैं अभी ये नहीं बात कर रहा कि what is right, what is wrong. वही रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है. जैसे कहते हैं अगर आप ईश्वर को भोग लगाएंगे तो आप हाथ धो के लगाएंगे, स्वच्छता से नॉन वेज नहीं खा के जाओगे, बहुत रूल्स एंड अल्कोहल कंज्यूम करके नहीं जाओगे. या देयर आर लॉट ऑफ बेसिक. अब आप बताओ, चलो मांसाहारी की बात होती है या मदिरा पान की बात होती है, ठीक चीजें हैं क्या? So see, what I feel is that, in this world, like I follow a concept which is to each its own. I think everyone should have their own rights and they should have. कितने लोगों ने मदिरा पान करके अपने घरों को बर्बाद किया है? आप ये तो नहीं बोलेंगे कितनों ने पूजा पाठ करके अपने घरों को बर्बाद किया? I'm not saying I'm against it. My opinion is that I'm against it, but I am also indifferent to those people who do it. Like I'm not going to go up to a person and be like, I mean, once I'm probably going to say. हाँ, बोल नहीं सकते उनको. बोल नहीं सकता. बस ठीक है, लेकिन अगर आपके मन में फिर भी ईश्वर के लिए दृढ़ निश्चय है या ईश्वर की भक्ति अंदर लाने के लिए एक बीजारोपण किया जाए, आप अपने आप बदलेंगे. मैं किसी को फोर्स, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं मंडे ट्यूसडे को दारू नहीं पियेंगे, फिर मंदिर में चले जाएंगे, वेंसडे को चले जाएंगे, तो या फिर मंडे को चले जाएंगे. तो लोगों का है ऐसा. तो मैं ये सोचता हूँ आप तो भगवान से ही दोहरा स्वरूप रख रहे हैं अपना. आज नहीं पीऊँगा, अब पीऊँगा, कल नहीं पीऊँगा, तो फिर आप एक तरफ तो रहो, है ना.
जो करना है अपनी पर्सनल लाइफ में करो, फिर उसमें भक्ति को मत इन्वॉल्व करो। हाँ, this is my point कि if you're doing it as well, then don't blame it on किसी the ने मुझे religion. कल कमेंट किया था इंस्टाग्राम के ऊपर कि मैंने मैक्सी में ड्रेस लगाया था फोटो अभी, तो पहले तो आप साड़ी पहनते थे, अब मैक्सी भी प्रमोट करने लग गए। मैंने उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी, बहुत भक्ति प्रोफाइल थी, उसके साथ साथ उसने दारू की प्रमोशन भी करी हुई थी। तो मैंने कहा पहले आप सोच लीजिए कहाँ प्रेम है, कहाँ आडंबर है। Very nice. तो आपने हमें बताया था we were talking about spirituality and religion per se. So my question to you is that there's a very fair or a fine line between spirituality and religious beliefs which people have. And as you said that there's a certain rule book that people who are religious follow, whereas spirituality is a very open-ended, that is my opinion, it's a very open-ended chord. So isn't religion, what I was talking about, man-made as well? लोग कहते हैं कि कोई रूल्स फॉलो मत करो, शबरी के जैसा प्रेम करो, श्री राम आएंगे और आपके बेर खाएंगे। मैं कहता हूँ शबरी जैसा प्रेम उत्पन्न करो पहले। मैं ठीक है, मत फॉलो करिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, बी ट्रू टू सोसाइटी, बी ट्रू टू योरसेल्फ, रिमूव रिड्यूस योर ईगो, बी हम्बल लाइक अ मैंगो ट्री। जो पेड़ लदा होता है ना फलों से, वो झुका हुआ होता है, उसमें कभी घमंड नहीं होता, है ना। तो घमंड फिर अकड़ना तो फिर एक कंकाल में भी होता है, एक मृतक शरीर में भी होता है। और अगर उस सूखे पेड़ की तरु छाया के नीचे कोई पथिक जन आके विश्राम करना नहीं चाहेगा, बी हम्बल, देन रिलीजन कम्स, देन सोसाइटी कम्स, then being spiritual comes. What do you think is the difference between spirituality and religion? मैं तो बस ये कहता हूँ आप एक अच्छे इंसान बन जाइए, फिर आप भक्ति जिस प्रकार भी करेंगे ईश्वर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आप इंसान 100% अच्छा बनने की कोशिश तो करें। जिस दिन आपने कोशिश करना चालू कर दिया ना, वो कहते हैं ना आप एक कदम उठाओ ठाकुर जी 4 कदम उठाएंगे, होगा नहीं। But what is the difference? That is what I want to know. The only difference what I think is some follow scriptures like dead true, है ना। कई संतों के बारे में बात हो रही है अभी, जो शास्त्रों के अनुसार इस उम्र की लड़की की शादी करने जानी चाहिए एंड ऑल। ठीक है, चलो जो भी मान्यताएं हैं, मैं ये हल्का सा डिफरेंस यही मानता हूँ, कहीं स्क्रिप्चर्स हैं तो कहीं मन की वैल्यूज़ हैं। दोनों ही अगर शुद्ध तरीके से फॉलो करे जाए, then it is beneficial for us only. Yeah. Scriptures are the main rules and regulations. But don't Shruti you and also Smriti. think that scriptures are also something written by humanity as well? Well, मैं तो कहता हूँ कि वो ईश्वर की कृति हैं। इंसानों की कृति होती तो आज इतने डिबेट हो रहे होते कि सुप्रीम कोर्ट उसको रहने ही नहीं देता। तो इंसान की कृतियों में फिर भी मिस्टेक्स निकल जाती हैं, ईश्वर की कृति में नहीं मिलेगी। This is also another take on it. But now, like, I love the fact that in today's time when we talk about, so we are I'm a millennial, then after us are Gen Zs, you and I are both millennials, and now Gen Alpha has also come into the picture. So they are also leaning a lot towards spirituality, because I think this is something, thanks to social media, thanks to the exposure that they're getting, they're leaning on towards spirituality. What is the true definition of spirituality according to you? Like, is it all energy related, or is it your mind or your brain cells? Because I think psychology also plays a really big role when we talk about spirituality. This is what we are taught, that if you know how to meditate, if you know how to calm your brain cells, it takes you onto a different dimension altogether. So what do you think about that? I think there's a huge difference between preaching and following it. People follow trends. एक धर्म गुरु आज फेमस है, लोग उसको फॉलो करेंगे। वो रिलीजियस गुरु जिस संप्रदाय से जुड़ा है, उससे उसको कोई इंसान को लेना देना नहीं है। उनकी 2 बातें अच्छी लग गई, आज मैं धर्म गुरु बन जाऊं, मेरी 4 बातें अच्छी लग जाएंगी, लोग मुझे फॉलो करेंगे ब्लाइंडली। अंधभक्त कहते हैं ना जिसको। Yes, sir. मैं ये कहता हूँ, घर के बाहर जय श्री राम के झंडे लगाने से और गाड़ियों के पीछे ईश्वर के नाम लगाने से आप हिंदू नहीं हो जाते। आप में से कितने ऐसे हैं जिनको शास्त्र आता है? आप में से कितने ऐसे हैं जिनको
स्मृतियाँ लर्नड हैं. मैं बाकी रिलीजन की आई वुड से हैट्स ऑफ टू देम. एवरी अदर रिलीजन दे इवन द चाइल्ड नोज टू रीड द स्क्रिप्चर्स. आज जब एक छोटा बच्चा हिंदुओं के अंदर भागवतम बोलना लग जाता है ना, बहुत वायरल कर देते हैं उसको. नहीं, but that is the point, na sir. Over here, we are talking about one bit where we are telling people to be so open-minded, but then at the same time, we are also telling people to read scriptures and again live in a bubble. नहीं, these मैं are बबल नहीं contradict- कहूँगा, मैं कहूँगा ज्ञान कहीं से तो आएगा ना. हाँ, वो आपकी अब बात कहाँ से आएगा? अब ऐसा तो हम लोग ऐसे ऋषि मुनि तो है नहीं जो दीति के साथ रहते हो. एक बार बैठ के हम लोगों ने साधना कर ली और हम संत कहीं बन से गए. ब्रह्मा जी प्रकट होके बोलेंगे कि बताओ वत्स क्या चाहिए. आप संयम तो लाएं जीवन में, आप ज्ञान तो लाएं जीवन में, आप ईश्वर की भक्ति के प्रति प्रेरित तो करें लोगों को. आप अगर 4 इंस्टाग्राम रील लगा के 10 लोग भी उससे प्रेरित होते हैं ना, मैं कहूँगा कि आपने भक्ति का राह चुन के गलत नहीं किया. Right. आप अगर मेरी वीडियोस देख के 4 लोग सोचते हो दिखावा कर रहा है, लेकिन 10 लोग सोचते हो कि यार ऐसी भक्ति मुझे भी करनी है, मेरा कार्य सिद्ध हो गया. Fair enough. But as you briefly just spoke about herd mentality, कि देख के अच्छा भी होता है बुरा भी होता है. There's a very naive concept in spirituality when we say, because nowadays we're talking about Gen Alpha, Gen Zs. They also believe that going into another dimension is a big part of spirituality. The reason why they get into drugs and they get into certain things which again have two sides to a coin. So I mean, do you think that is part of spirituality? माँ बाप बहुत खुश होंगे अगर बच्चा एक पंडित बन जाए rather than being a drunkard. Yes, sir. है ना. तो जहाँ तक कि ड्रग्स की बात है, जहाँ तक कि बीइंग हाई ऑन XYZ थिंग्स, किस माँ बाप को पसंद होगा? क्योंकि उनका आगे से ये, मैं एक टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, वो सीधा उनका आर्गुमेंट ये आता है, अरे शिव जी भी तो भांग पीते थे. हाँ, शिव जी ने तो जहर भी पिया था, हलाहल पिया था, नीलकंठ बन गए थे, पी लो, पता चल जाएगा. शिव जी ने कभी आप अच्छा, उन लोगों से आप ये पूछिए कहाँ पिया है शिव जी ने भांग को, है ना. धतूरा भांग है क्या, लोगों को कंसेप्ट ही नहीं पता है. जब शंकर जी ने हलाहल पिया, जहर पिया, तो पार्वती मैया ने उनके यहाँ पे भांग मली थी, मला था, लेप किया था शांत करने के लिए. आज हम शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं ना, वो कहते हैं जल के अंदर मग्न हो गए, हाँ जी. उनको शांत करने के लिए जलाभिषेक होता है. आप लोगों ने तो सोच लिया कि शिव जी वो क्या कहते हैं, वो का क्या कहते हैं ऐसे, चिलम. Even I don't know. हाँ, चिलम. even I don't know the term. चिलम पीते हैं. अरे भाई, उन्होंने तो जहर पी लिया था. सांप लटकाते हैं, गले में लटका लो. भगवान बनना, भगवान के साथ अपने को कंपेयर करना मूर्खता है. Yes, sir. I agree with this statement. स्टॉप फॉलोइंग blindly and stop becoming Krishna, becoming Shiva. You cannot become God. You can only try to become a humble servant. ISKCON, I follow ISKCON. ISKCON के अंदर एक फिलॉसफी है जिसमें कहते हैं हम सर्वेंट के भी सर्वेंट हैं, है ना. तो दास अनुदास का कंसेप्ट है, आप दास के भी दास होते हैं. वो ह्यूमिलिटी है. यू बिकम हम्बल लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास which is always bending down. Yes, sir. Whenever you see a guru, whenever you see somebody who is higher pedestal to you, fall down like a stick. दंडवत दे दो उसको. वो ह्यूमिलिटी होती है. आप करबद्ध निवेदन करें, प्रणाम करें, वो ह्यूमिलिटी होती है. आजकल इंसान झुकना नहीं जानता. वो चाहेगा मैं सामने वाले को सामने झुकाऊं को कैसे. झुकाऊं कैसे? तो ह्यूमिलिटी कहाँ आई? तो भक्ति का बीजारोपण कहाँ हुआ? वो बीजारोपण जब तक नहीं होगा जब तक वो सोसाइटी के अंदर रह के मंदिरों में नहीं जाएंगे. कहते हैं मंदिरों में भगवान नहीं मिलते, घर में मिलते हैं. ठीक है, मंदिर जाके देखो, जो शांति मिलती है ना, शायद आपको अकेलेपन में ना मिले. क्यों? वाइब्रेशंस होते हैं, एनर्जीज होती है. 5 सेंसेस वर्क. घंटी बजती है, अगरबत्ती की स्मेल होती है, पुष्प की स्मेल होती है, आपके नेत्रों से ईश्वर का दर्शन होता है. आप सारे सेंस आप फील करते हैं. यू आर फॉलोइंग ऑल द 5 सेंसेस टुगेदर एंड देन भक्ति का बीजारोपण. Well said. Yeah.
Totally agree. And when this is again said in the Shastras, when your five senses active, then it takes you to a different dimension Exactly. altogether. But then I also have this perspective that I don't think that I need to go to a religion. Me per se, like I follow Vaheguruji a lot. I'm a Punjabi, but I don't say that I need to go to a religious place to actually meditate or to ask for something or something of that sort. I do it sitting at home as well, and I get my 2 cents and my sense of वो एक peace over here. दोहा है ना कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। कि कस्तूरी एक बहुत सुगंधित पदार्थ होता है Yes, sir. जो कि डियर की नाभि में होता है, उसे पता ही नहीं चलता, वो ना हर जगह ढूंढता है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। उसी प्रकार घट घट में राम है, आप ढूंढने के लिए इधर उधर मत भागो, बैठ के अगर मनन करोगे तो वो मंदिर भी घर आ जाएगा। लेकिन उस प्रकार की चेतना तो बनाओ, भूमिका तो बनाओ। आपको मैं 2 घंटे बोल दूं, आप यहाँ पे बैठ के सुखमनी साहब का पाठ कर लीजिए, है ना, या फिर एक भगवतम का श्लोक पढ़ लीजिए, ये मन बावरा है, वो भटक जाएगा। तो मंदिर में क्या है, आप लोग सोचेंगे कि यार यहाँ भटक गया तो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। तो कोई सामने है ना खड़ा हुआ, ईश्वर है ना या ग्रंथ है ना, तो आप उससे डरते हैं। एक मैं ये नहीं कहूँगा कि ईश्वर से डरो, लेकिन एक स्टिक की आवश्यकता ज़रूर होती है। मैं तो ये सोचता हूँ कि कम से कम आपके अंदर डर उत्पन्न होता है, कम से कम आपसे भय है कि यहाँ कुछ गलत कर दिया ना, ईश्वर कहीं ना कहीं तो देख रहा है देख मुझको, रहा है मुझे। है ना। Do you तभी think there is a शायद power which is controlling you, 100% there is, or is it all your mind? no, there is an energy। अच्छा, एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। Because I have, I mean, 2 opinions on मेरा this. सुनो पहले। Please. साइंस का प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे, Yes, sir. है ना। कभी बनाया होगा बचपन के अंदर आपने सोलर सिस्टम, सोलर प्लैनेट का, है ना। ऐसा कभी हुआ रात को आंधी तूफान आया, बूम पटाखा हुआ और रात को सामने आपके सामने प्रोजेक्ट आ गया, सामने प्रोजेक्ट आ गया ऐसे? क्रिएट हो गया अपने आप, नहीं हुआ ना। Okay. बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है? Please, I mean, please. बिग बैंग थ्योरी सेज 2 meteors भिड़े, ये सन बन गया, ये मून बन गया, ये प्लैनेट बन गया। यार कैसी बातें करते हैं। एग्जैक्ट पोजिशनिंग ऑफ सन, मून, स्टार्स फॉर दैट मैटर, अर्थ फॉर दैट मैटर। अर्थ अगर हल्का सा इंच इधर हुआ जल जाएगा, इधर हुआ तो जम जाएगा, है। यूरेनस, आप किसकी भी बात करो, प्लूटो गायब हो गया। Yes, sir. सब कुछ है, हर प्रॉपर सीजन वेदर हो रहा है, समय में बदल रहा है, सूरज आ रहा है, सूरज जा रहा है, चंद्रमा आ रहा है, ग्रहण हो रहा है, एक्लिप्स हो रहे, सब कुछ एक प्रॉपर टाइमिंग पे हो रहा है। तो क्या ऐसे बिग बैंग थ्योरी की वजह से हो गया है? ये लटक रहे हैं जो ऊपर आसमान के अंदर गोले, वो ऐसे हवा में लटक रहे हैं, वो ऐसे हवा में लटक रहे हैं, I get that point. है ना। You're not wrong. देयर इज, चलो नहीं है भगवान, कोई तो एनर्जी है हाँ, जो इस that's सब something- को चला रही है, Maybe there's an energy. वो स्पिरिचुअलिटी Yeah, है। and energy का my opinion is energy का ही synonym science होता है. True. Because everything they say ना that science has the answer to everything. I think there's a science behind each and everything. Exactly. Even to me, talking or me doing anything. ठीक है, there's a साइंस science से इंसान साइंटिस्ट बन सकता है, लेकिन उसको आजकल देख लो जो गुलाब आते हैं मार्केट में, behind. क्या सर है ना, उनका क्या? वो कितने, जो आप नेचर के अंदर इतने खूबसूरत पुष्प देखेंगे जो ईश्वर बना सकता है, कोई साइंटिस्ट नहीं क्रिएट कर सकता वैसे फ्लावर्स, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम आई एम नॉट सेइंग दैट साइंटिस्ट्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग। बेचारे मून पे ले जा रहे हैं, है ना, कल आपका घर होगा वहाँ पे, फिर मेरा होगा। बिल्कुल सही। नो सरकाज़म बट, है ना। Like correct. So yes, sir. I mean, I totally agree that I think religious beliefs and spirituality as a concept has 2 different coins and 2 different sides to a coin. There are 2 different sides to a coin. So I think we've spoken so much about spirituality. I think we're going to lighten up the mood and come back to fashion. I think you started with fashion and art because this is also the Heartful Show. So we have to talk about how art came into the picture, and art and fashion are the same. It's the same industry. How did that come into the picture, and how did you get into fashion design? Art and fashion came to me through literature. Yeah. I am a literature graduate from University of Westminster, London. So art, कला को अगर आप बाइंड करके रखते हैं, आपको तो खूब मालूम होगा कि अगर आप कला को बांध के रखेंगे तो वो Art ही अपने है। सही स्वरूप में नहीं आ पाएगी। लिटरेचर को भी ऐसे ही है, रोमांटिसिज्म था, Yes, sir. है ना,
और सिमिलरली कपड़ों के अंदर भी जेंडर न्यूट्रलिटी हो जाती है। फिर उसके अंदर आप एक और बात देखें, जब मैं कभी किसी कपड़े को डिज़ाइन करता हूँ, मुझे शांति से बैठ के पीसफुली ये सोचने का मन करता है, ये उस इंसान पे कैसा फबेगा। वो सिलुएट्स क्रिएट करते हैं, वो कट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन कई क्लाइंट्स कहते हैं कि आप इस तरीके से बनाइए। ठीक है, आपको उसका एलिमेंट रखना भी अनिवार्य होता Yes, sir, है, of course. बट एट द सेम टाइम आई डू नॉट get astray from my own designs. Yeah, because the whole concept of fashion is that it does not have to look good on one specific person. True. It should be, I mean, But since comfortable. I'm a couture Yeah. business, so I prepare garments according to the client's need, also according to my whims. Hmm. ये मेरा एलिमेंट है, वो जाएगा। एंड 99% of the garments which I create are white. Yeah. Because you told me your significance with the color white as well, Yeah. and I think that speaks louder than colors. But now let's talk about fashion weeks. Fashion weeks are so abused as a concept because there's so much politics, there's so much drama, there's so much favoritism. Have you ever faced those in such situations? Have you faced nepotism for that matter, or have you faced politics in fashion weeks? शायद जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बहुत गहरी बात होगी। Hmm. फैशन इंडस्ट्री के अंदर जब मैं नया नया गया था, Hmm. मुझे एक डिज़ाइनर मिले थे जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत बड़ा नाम है। Sorry. तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये जो कास्टिंग काउच का कंसेप्ट है ना, मुंबई के अंदर बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। था और रहेगा। कितने ही मॉडल्स मेरे पास आ जाते हैं और बहुत मैसेजेस आते हैं कि हमें शो करवा दो। मैं ये कहता हूँ कि मेरे सामर्थ्य में होगा, मैं ज़रूर कराऊँगा आपको, लेकिन आप उस हद तक ना जाएं जब मुझे भी शर्मिंदगी हो और आपको भी शर्मिंदगी हो। Who is propagating it? The designers? Designers, No. organizers. The models. If the models agree to do that stupid stuff, designers are already ready. आप अपने तन को बेच के आप एक बिकाऊ वस्तु बन जाते हैं। Then you're talking about nepotism, then you're talking about favoritism. No, but have you been part of like? मैं because तो when कभी you नहीं, started- मेरे पास when जितने you भी मॉडल्स started- आते हैं, work to work. When you started, when you No, started. never. I started from a scratch. That's exactly what है I'm ना? asking. Because you कई- also must have started somewhere. and पता you नहीं, were- शायद मैं ये कहता हूँ आप में एक ऐसा चार्म होना चाहिए जो दूर से ना भीड़ में आपको नज़र आ जाओ, वो क्रिएट करना चाहिए। मैंने कभी किसी की सहायता लेके या किसी को एज अ सक्सेस लैडर लेके या मेरा कोई गॉडफादर रहा हो, नहीं। हाँ, गुरु बहुत रहे हैं, दोस्त बहुत रहे हैं, यार बहुत रहे हैं जिन्होंने मुझे राह दिखाई कि करण ऐसा नहीं, ऐसा करो। माता पिता का सहयोग हमेशा रहा। फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट Yeah, व्हेन of इट कम्स course. टू They're your backbone. या वो ऐसी, तो मैं तो वही कहता हूँ, माता तो एक ऐसी बैकबोन होती है जो कि बाजार में नहीं बाजार मिल नहीं जाती। मिलती। आपको स्लिप डिस्क हो जाएगा, पीठ फिर भी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो माता नहीं मिलेगी बाहर आपको। सो आई थिंक पेरेंट्स डू प्ले अ लार्जर रोल इन दैट, वेयर एज फ्रेंड्स ऑल्सो डू। Yes. दे टीच यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एंड जब मुझे फैब्रिक के बारे में समझ नहीं आता था, मैंने कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं किया, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते थे जो डिज़ाइनर्स हैं आज जयपुर में, बहुत अच्छे नामी गिरामी हैं, वो मुझे, मैंने बोलता था आपको कॉटन या फिर आपको मलमल या फिर आपको सैटिन या फिर आपको Silk, ऑर्गेन्जा, ये कैसे पता चल जाता है कि ये प्योर है, ये प्योर नहीं है? बोलते करण सिंपल बात है, हाथ लगा के पता चल जाता है ये 60 है, ये सिंपल है, ये कुछ भी है। दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई डिज़ाइनर फ्रेंड्स who are very aged, who are very good, kind, down to earth, and they told me about it. तो वैसे गुरुओं का होना इम्पॉर्टेंट है। जब ये नेपोटिज्म का सामना करना पड़े आपको, जब आपको ये पॉलिटिक्स का सामना करना पड़े ना, ये But सब आपके पीछे साथ हट ऐसा जाता है। कुछ कभी politics हुई? I want to know that. And why? Because only for the sake that no one else goes through the same thing ever again. See, Because- what I feel is you are the only one who allows politics to happen to you. In Okay. what sense? आपको आपके डिज़ाइंस पे फ़क्र है, आपको अपने काम, आपको अपने वर्क पे भरोसा है, तो आप कभी किसी पॉलिटिक्स का सामना नहीं करेंगे। इफ़ यू आर प्रो इन योर ओन फील्ड, मैं आपको बोलूँ कि आपका आर्ट है ना, आप किसी के अधीन हो जाओ, आप कहोगे करण आई एम वेरी मच प्रो, आई नो माई आर्ट इज़
at par, excellence. You will never bend down with that. You will never compromise with the quality. When it comes to politics, when it comes to nepotism, about all these people in the fashion industry, I would say, ठीक है, पेज 3 का वर्ल्ड है ना, शो ऑफ का ज़माना है, iPhone 16 Pro Max नहीं दिखाओगे तो सैमसंग वाले को कोई पूछता नहीं है ना, ये सोसाइटी है, आई अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम सिंपल बात बताऊं, मैंने भी कॉटन की साड़ियों में नाम बना लिया अपना, प्लेन साड़ीज़ में नाम बना लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 लाख की वेरी फैंसी, हाँ, या फिर मनीष मल्होत्रा जी पहन लिए, सब्यसाची पहने, तभी पता चला करण कौन है। मुझे तो कहते थे सूती साड़ी के अंदर आता है, मुझे तो कहते थे निरूपा रॉय रखता है। मैंने कहा आप निरूपा रॉय को गंगूबाई वो मैंने कहा आप निरूपा रॉय को भी इसलिए जानते हैं क्योंकि वो कुछ हैं, है ना। तो बीइंग वेरी सिंपल, बीइंग योरसेल्फ, बट व्हाट इज Karan Wiig's message, like how what is Karan Wiig's personality in today's time beyond sarees? आई वुड से चलो साड़ी नहीं है ना, मैं अगर सिंपल सूट में भी चला जाऊँ ना, लोग मुझे फिर वही कहते हैं करण साड़ी में आना चाहिए था, वो मज़ा नहीं आ रहा, वो इन्जॉयमेंट नहीं आ रहा, वो करण साड़ी में ही लगता है कि करण है। जब किसी इवेंट में जाओ, चाम वो कहते हैं ना कि व्हाट इज करण विदाउट sarees, yeah, without sarees per se. तो मैं तो ये कहूँगा, देखो लोगों ने सिर्फ साड़ी को ही आगे तवज्जो नहीं दी, लोगों ने मेरी स्पिरिचुअलिटी को भी ध्यान में रखा, लोगों ने मेरे नेचर को ध्यान में रखा, है ना। आप जिस प्रकार से रेसिप्रोकेट करेंगे, सोसाइटी आपको वैसे ही वापस पे बैक करती है। आप दैट इज आल्सो कभी कभार, बट हाँ, मैं मानता हूँ कि आप कर्म करते चलें, फल की इच्छा ना रखो, और मैं इस पे पूर्णतः विश्वास रखता हूँ। अगर आपने जिस दिन ये सोच ली ना कि यार मैंने इतना अच्छा किया इस इंसान के साथ, इसने बहुत बुरा किया, आप उस दिन तोल मोल की बात कर रहे हैं। तोल मोल की बात करना छोड़ दो, है ना, वो सब देखता है, आप उसके हो जाओ एक बार 100%। ये ना ठाकुर जी को ना मैथमेटिक्स नहीं आता, है ना, तो 20% मेरा है, 80% किसी और का है। यू बिकम 100% टू हिम, डिवोटेड, he will become 110% to you. Try this and you'll find the difference. I mean, yeah. As I said, to each its own. I have different beliefs, but yeah, I know where you're coming from, and I think it's not false per se. Right. If you believe in a certain person, you turn into that. करके देखो ना एक बार। So किया हुआ है. I mean, वही as I'm saying, I have my different beliefs which I've accepted, and I think it's all about your acceptance as well. No, at the end of the day. True. Now you have accepted this, so you're fine with this. True. Some people might be averse to this. Some people, I mean, of course, there are people averse to this, and we will get to that point as well. कई लोगों को तो लगता है कि साड़ी इसलिए पहनता है फेमस हो जाएगा। अरे भाई मुझे तो लोग हमेशा कुछ बोलेंगे। अरे तो मुझे तो पता ही नहीं था कि साड़ी पहनने से इतना फेम मिलता है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, है ना, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था साड़ी पहनूंगा तो अखबारों में आ जाऊंगा। कभी ये नहीं सोचा कि आउट ऑफ लीग वर्क करोगे तो ऐसे फेमस हो जाते हैं। फेमस भी इंसान यूं होता है और डिफेम भी यूं मिलता है। आपने ठीक कहा था ना, when we had started the conversation, there's a very fine line between being famous and being viral. Exactly. So I think मैं कहता हूँ वायरल तो आप इंस्टाग्राम पे रील देख लो, मिलियन व्यूज कैसे कैसे वीडियोस पे आते हैं। yes sir. आप कुछ इंटेलेक्चुअल बोल लो, लोग नहीं सुनेंगे नहीं उसको। सुनेंगे, बिल्कुल नहीं। People have a very small attention span. That is what you need to grab people. And negativity sells, like that is a fact at the end of the day. आज चलो मुझे लाख लोग भी जानते हो, अगर वो मेरे को मेरी अच्छाई की वजह से जानते हैं, मेरा जीवन तृप्त हो गया। Talking about negativity, I just remembered one of these incidents which you had gone through, and I think it sucks. What was that Zudio incident which happened with you? इस प्यारी सी ब्रांड के अंदर मैं कुछ वस्त्र कपड़े खरीदने गए थे। आई वॉन्टेड टू परचेज माई जिम वेयर, तो मैंने अपने मैं फीमेल सेक्शन से ही हमेशा कपड़े खरीदता हूँ, बट उन्होंने मुझे 2-4 लोगों ने, तो जो वहाँ पे जो कार्यकर्ता होते हैं, उन्होंने मुझे अलाउ किया। फिर एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। मुझे लगा पूरा क्या नाम है, पूरा जिला आने वाला है एक एक करके उनका, टू क्वेश्चन मी। एंड व्हेन आई वाज इन द चेंजिंग रूम, व्हिच one of there with the second one, the third one, the fourth one allowed me to go inside the women's changing room where there was no women at all, to go and change, and then they kept on knocking at the door, and then they asked me to come out in whichever way I was. Wow. यहाँ तो थोड़ी इंसानियत दिखा दो, चलो जेंडर छोड़ो,
आइडेंटिटी छोड़ो, कोई भी इंसान अंदर है, किस अवस्था में है आपको क्या पता, और आप बाहर ठोक रहे हैं गेट को। थोड़ी इंसानियत दिखा देते, हाथ जोड़ के मैं भी बात कर लेता, हाथ जोड़ के वो भी बात कर लेते। फिर वही कहते हैं ना कि सीधी उंगली से हाँ, ये नहीं है ना? निकलती, टेढ़ी करके निकालनी पड़ती है। But so, you know, it sucks that this happens in a country like India as well. Because I've also seen, and this is my other side of the, I'm playing the devil's advocate. I've seen a lot of people even abuse this power. Like, even in my own school, there were, because my school was very progressive and they used to endorse gender neutrality and a lot of other concepts as well. So a lot of gay people used to take advantage of this as well. So do you think that in the community there are also people who are taking advantage of मैंने this आपको situation? स्टार्टिंग में क्या कहा था कि वो गे का टैग लगा के मत चलो, कई लोग करते हैं, है ना? आप उसका मिसयूज मत, किसी की पावर का, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग, अगर आप साइंटिस्ट हैं, अगर आपने एक ऐसा मेडिसिन क्रिएट कर लिया, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एक आर.एल. स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन करके एक लेखक हुए जिन्होंने किताब लिखी डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। What does it teach you? That being intelligent, being scientifically ahead is not always important if you can use your power or misuse your power. उसने उसमें अपनी पावर्स को मिसयूज किया, है ना? सिमिलरली और भी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम लोग को सिखाते हैं कि इफ़ यू आर इन पावर एंड इफ़ यू आर मिसयूजिंग देम अकॉर्डिंग टू द डिसहिंड्रेंस ऑफ द लॉ, देन यू आर रॉन्ग। आप किसी भी चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको गड्ढे में ज़रूर गिराएगी। I agree, sir. And बात तो सच है ना, like even in Bollywood, men do wear saris. Like if we talk about the biggest comedy show in India, in his show as well, people wear saris. But when we do it, when a normal layman does it, he is. अगर often- मैंने मूवी में बोला होता ना, हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ, हाँ, तो शायद मुझे एक्सेप्टेंस मिल जाती, है ना? और जीवन में बोल दिया तो लोगों को हाँ. एंटीनास खड़े हो जाते हैं उनके। तो दैट इज़ व्हाट माई पॉइंट इज, व्हेन पीपल सी इट इन द मूवीज, दे आर गेटिंग ब्लॉकबस्टर्स एंड देन करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। So probably I think why that also happens is because the communication which goes in such shows and movies and all the videos we watch is that it is art. वो फन एलिमेंट की That तरह is से a fun. It project is किया all. जाता है। मतलब तो उसमें लिखा भी आता है disclaimer that it is art. Over here, I think people take advantage of social media as well. I'm being very honest. This is my 2 cents as well. There are a lot of people who take advantage of social media. They misuse social media for gender neutrality, being gay, being lesbian and stuff. The reason why a lot of negativity also attracts them. नहीं, मैं तो आयुष्मान खुराना का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो कितनी अच्छी मूवीज, He's done अमेजिंग वर्क करते Yeah. हैं, एंड व्हेन ही टॉक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स ही रियली मीन्स इट, Yes, sir. है ना? और किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती ऐसी मूवीज बना लें। आप course. है ना पुरानी 90s की मूवीज पे उठा के देख लो, यू विल फाइंड सो मेनी होमोसेक्सुअल कैरेक्टर्स इन दैट, Yes, yes. है ना? yes. प्रोजेक्शन देखना, आज की सोसाइटी के अंदर अगर हम लोग प्रोजेक्शंस पे वर्क कर रहे हैं ना, अगर मैंने वो आज कर लिया तो लोगों को लगेगा कि आई एम गोइंग अगेंस्ट। Yeah, that's exactly what I was saying. Through social media, people are projecting something which is absurd. True. So that is what I meant. Like if I'm gay, for example, a hypothetical situation, I'm gay. I will project myself in a way which accommodates people as well. At the same time, I can't just go there without a T-shirt and be like, oh, why don't I have the right not to wear anything? एग्जैक्टली, This मैं is वही not कहता what- हूँ, यू कैन नॉट प्रोजेक्ट, यू कैन नॉट एनफोर्स, यू कैन नॉट, आप किसी पे अपनी सेक्सुअलिटी थोप नहीं सकते। That's exactly what I'm saying. Yeah. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, आप स्ट्रेट हैं, आप तमाशा नहीं बिखेरते हैं बाहर जाके, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो, या मुझे लड़की से शादी करनी है, मुझे इस जात की लड़की से शादी करनी है, मुझे इससे करनी है। यू आर योर सेल्फ, यू डू नॉट नीड, ठीक है हम कहते हैं कि हेट्रोसेक्सुअल्स डू नॉट नीड फ्रीडम। मैं आपसे पूछूंगा, इज इट ट्रू? आप लोगों को भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ता है, तो क्यों हम लोग मर्यादा में ना रहें? मेरा बार बार यही कहने का मतलब होता है कि अगर आप मर्यादा में रहेंगे ना, आप यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं। क्यों? अच्छा, एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर किसी ने शास्त्रों के अंदर वाद विवाद करके होमोसेक्सुअलिटी को गलत ठहरा दिया था, और किसी स्त्री के कमेंट थे उसके ऊपर। मुझे क्या था वो कमेंट? कि शास्त्रों के अनुसार अगर आप LGBTQ सोसाइटी को प्रमोट कर रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है?
और उसमें LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बहुत बहुत बुरा बोला गया। उसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी के लोगों ने उस पर अपशब्द डाल दिए। उसके बाद उसमें एक कमेंट ऐड किया गया, करण विग आप इसका उत्तर दें शास्त्रों के अनुसार। मैंने लंबे लंबे हाथ जोड़े, मैंने कहा आपने इसको गंदगी बना दिया है। उसके कमेंट्स पढ़िए, आप कम्युनिटी से हैं ना, अगर आप अपशब्द का प्रयोग बीइंग स्ट्रेट करेंगे ना, मैं साथ नहीं दूंगा। आप हेट्रोसेक्सुअल हो, मैं साथ नहीं दूंगा। मैं होमोसेक्सुअलिटी का साथ क्यों दे दूं? फिर जहां आप नीचता पे उतर आओगे, अपना अस्तित्व आप दिखा रहे हैं लोगों को, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग एजुकेशन। आप एजुकेटेड हैं, देन ट्राई टू टीच देम एंड एडवोकेट देम इन अ राइट मैनर rather than showing such things. But what does the Shastra say? If we talk about homosexuality as वो per se. नहीं मानते हैं, है ना। वो कहते हैं कि अगर आप अननेचुरल सेक्स की तरह कहा जाता है। बात तो सही है वैसे कि अननेचुरल सेक्स क्यों कहा जाता है कि अगर आपने प्रोजेनीज करनी है, पोस्टेरिटीज करने हैं, तो द कॉपुलेशन मस्ट बी डन only to beget children, not to have safer sex, whereas you can say that protective sex is also not allowed. लेकिन प्रोटेक्टिव सेक्स भी तो लोग कर रहे हैं आजकल। Fair enough. है ना, तो मानना है तो पूरा मानो फिर। हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट तो ये था कि इट वाज टू रिप्रोड्यूस एंड व्हाटएवर, नॉट फॉर प्लेजर पर्पसेस। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप उस बच्चे को पैदा करके ईश्वर के भक्ति में लगा सकते हैं तो ही बच्चा पैदा करें। आजकल कितने लोग भक्ति में नाउ लगते हैं। अगेन कमिंग बैक टू द कन्वर्सेशन वी वर हैविंग, इजंट दिस द रूल बुक? देखो रूल बुक तो है, तो फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं ना, हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन की भी तो रूल बुक है। नहीं, बट दैट्स व्हाट सेइंग, यू सेड दैट ऑलवेज अडहियर टू द रूल बुक, सो देन व्हाई? मैं ये नहीं कहता कि और ठीक है, हम लोग कभी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस में होके ना, अगर मैं आपको बोलूँ आज होटल में चल के खाना खाते हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को टेबल मैनर्स फॉलो करने हैं। हाँ। लेकिन इतना तो मालूम होगा आपको कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये अभद्र लगेगा, है ना। ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप 100% रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो, एंड कोई भी नहीं कर सकता। मान लिया इस बात को, 1% ही कर लो। I do not ask you to completely go through the Manusmriti, Shrutis and Smritis or the textbooks of your religion, my religion or XYZ religions. Religiosity, spirituality will come unto you if you be yourself If you and be honest. That's it. And remove and shun away that ego from you. If you remove that egoistic attitude of yours, trust me, all the problems will get resolved. वो नरसिंह देव देखो आपके यहाँ भी हैं, है ना। तो नरसिंह देव क्या करते हैं, कहते हैं कि आप ठाकुर जी के पास है ना, कृष्ण जी तो बहुत लीलाएं रच रहे हैं, तो वो नरसिंह देव को अपने आगे रखते हैं, विघ्न विनाशक हैं वो। तो नरसिंह देव की ना नाखून बहुत तेज है, तो अपने नाखूनों से वो सारे विघ्नों को रिजॉल्व कर देते हैं और फिर वो कृष्ण और राधा की तरफ फेंकते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। तो नरसिंह देव इज प्रोटेक्टिंग यू। आप अपने आप को सरेंडर करके देखिए। सरेंडरिंग is the biggest. Every religion, every caste, everywhere, भले spirituality और religiosity हो कहीं भी हो, surrender and surrender your ego. कहते हैं ना I want God, कभी नहीं मिलेगा ईश्वर। क्यों? I क्या है? Ego. Want क्या है? Desire. Ego हटाओ, desire हटाओ, बचा क्या? God will come to you. Wow. Wonderfully said, wonderfully placed. But yeah, I mean, we live in an imperfect world, and I think there are certain harsh realities that यूटोपियन वर्ल्ड की तो कामना तो कितने राइटर्स ने भी करी है। दे ऑलवेज वांटेड टू लिव इन अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। What is the definition of a brave new world? ब्रेव न्यू वर्ल्ड तो जैसे कि forget even word. I want to talk about a brave new India. What is the definition of a brave new India? आप अपने आप को भारतीय कहलाने पे गर्व तब, गौरवान्वित तब महसूस करेंगे जब आपके अंदर आत्मीयता का भाव होगा। आपको अपने परिधान से प्रेम है, आपको अपने भारत से प्रेम है। आप जब एक पर्टिकुलर कंट्री के होके इंडियन होने पे प्राउड तो करो। आज हम लोग सिर्फ 15 अगस्त को ही झंडा फहरा रहे हैं, है ना। 15 अगस्त को ही हम इंस्टाग्राम पे रील्स लगा रहे हैं, है ना। साल भर करके देखो, हमारे सोल्जर्स दे आर वर्किंग टू हार्ड फॉर द कंट्री। माताएं बहनें
अपना सुहाग उजाड़ रही हैं Hmm. एक भारत माता के लिए, आप उसके हो के तो देखो. 100% devote yourself to one particular field or a country, Agreed. then you call yourself as one particular bhakt of whichever country you are. Patriotism is important. Lovely. And what is a path ahead for people in the LGBT community and the homosexuality? I mean, what is the path for homosexuals? मैं तो ये कहता हूँ कि घर के बाहर लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, लेकिन घर के अंदर भी बहुत हैं. या घर के अंदर की सुझाव हो, है ना? बाहर की सुझाव. तो मैंने तो कहा कि सेक्शन 377 will hold no good to you unless you resolve the values, the problems within the community. हम within the community के अंदर क्या करते हैं? देखना उसने क्या पहना है, देखना उसने क्या कर दिया. आप within the community के problems को resolve करिए पहले. मैं I'm very much clear and cut and very crystal clear when it comes to my community as well. मैं उनकी तौहीन नहीं कर रहा. मैं बता रहा हूँ बेटा सही राह पे चलो, सही तरीका तो पकड़ो. आप जो सही बोल रहे हो आप, बट ये जो वर्ड सही है ये भी तो इतना सब्जेक्टिव है ना. सही है मान लिया, लेकिन क्या किसी को गाली देना इंस्टाग्राम पोस्ट पे सही है? नहीं सर, मैं इसमें भी ये क्या मानता हूँ कि व्हाट हैपेंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्टिविटी कम्स इनटू प्ले. मान लिया Cultures, if we talk about the specific Indian culture, it has a very different meaning to it. Are you understanding where I'm coming from? Like this is मैं कल्चरल को भी चलो पीछे रखो, सब्जेक्टिविटी को भी दूर रखो. मैं तो कह रहा हूँ एज अ ह्यूमन, एग्जैक्टली एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम टॉकिंग अबाउट. आप अगर किसी से अभद्र भाषा में वार्तालाप कर रहे हैं तो गलत है. तो कोई सुनेगा नहीं, वो सुनेगा बिल्कुल कोई गलत, भी, है ना? हाँ जी, बिल्कुल गलत. तो आप अपनी कम्युनिटी में, अपनी कम्युनिटी को यही बोलना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, विनम्रता का भाव रखो, है ना? सारी उलझनें सॉल्व हो जाएंगी. लेकिन सहो मत बुरा. बुरा सहने वाला, जैसे कहते हैं ना कि नेल्सन मंडेला यूज्ड टू से कि ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड बोथ आर डिवॉइड ऑफ फ्रीडम. ऑप्रेसर इसलिए क्योंकि उसके अंदर मन में है कि मुझे इसको ऑपरेशन करना है, और ऑप्रेस्ड क्योंकि वो तो खुद ही सह रहा है. सह रहा है वो. तो करने वाला और सहने वाला दोनों ही गलत. दोनों ही गलत है. वो अपने मस्तिष्क में एक बात को हमेशा प्रज्वलित रखें और सोचें कि हम लोग किसी भी कम्युनिटी के लिए काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें, और भाइयों पढ़ लो, एजुकेट हो जाओ, है ना? आप हेटरोसेक्सुअल कम्युनिटी की बात करें, आपके 90% नहीं होंगे, चलो ठीक है. आप अच्छा अंग्रेजी में वार्तालाप कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से किसी कंपनी में काम कर सकते हैं. यू गोना बी डूइंग वेरी वेल फॉर योरसेल्फ. एटलीस्ट पापी पेट का सवाल है ना? मैं तो ये कहता हूँ चलो उतना भी मत कमाओ, चादर से ज़्यादा पैर मत पसारो. जीवन में 15,000 रुपये कमा लो, अच्छी लकड़ी आ जाएगी, अच्छी तरीके से चले जाओगे. चूल्हा नहीं, ऊपर चले जाओगे. 15,000 के अंदर साफ सुथरी लकड़ी आ जाएगी, चंदन की माला लग जाएगी, और खूब आराम से चले जाओगे. दूसरे का दिल दुखाना, इधर का उधर करना, आप उस इंसान की बात मत करो जो आपके सामने नहीं है. आप उस इंसान के बारे में मत सोचो जो आपके बारे में बुरा भी करके गया. बुरा गया तो ठीक है, भला किया तो ठीक है. नेकी कर दरिया में डाल, है ना? ऑल दीज idioms एंड proverbs स्टैंड ट्रू. एटलीस्ट स्टार्ट फॉलोइंग देम. मैं आपको ये नहीं कहता 10 के 10 फॉलो करो, एक तो करो, दूसरा अपने आप आएगा, है ना? प्रतिलिपियां निकल के आती हैं उसकी. I think that was one of the deepest conversations we've had at the Heartful Show, and I think yeah, you've given me also a different perspective when it comes to a lot of topics, especially the LGBT community or homosexuality as a concept, and even art as a concept. I'm so thankful to you. So now, I mean, of course, we have to wrap up and we have to come on to the last segment of the podcast. So we call this segment the Heartful segment. So this is a segment where we talk about your heartful moment. So I'm going to start with this question: what has been your heartful moment since in your entire journey? What has been your most heartful moment? When I first came out to my mother. Wow. Okay, fair enough. Like that's any other heartful moment you've had in your entire journey? देखो मेरा तो आरंभ और अंत मेरी माता ही है. बिल्कुल सही. तो फिर वही हार्टफुल कनेक्शन है मेरा. Fair enough. So now I'm going to ask you certain questions. This is like a rapid fire. Answer them in a very funnily manner.
and you can act it out as well, or you can dance it out as well. That's up to you. Okay, so it's going to be very fun. One color you'd wear for a whole year. सफ़ेद, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में. If you could turn into any movie character, which one would it be and why? मूवी कैरेक्टर, रेखा. Why? एलिगेंस. Wow, yeah. And she actually wears a sari like you itself. So Rekha ma'am, I please. wear side like her Yeah, probably. I mean, yeah, that's what I meant. No offenses रेखा जी, सुन रही हो Rekha तो. ma'am, please. We have a disciple. First outfit you'd wear if the world had zero gender rules. सारी, always, Always? always. Nothing Western. No. Are you into Western garments now? वो मिनी स्कर्ट्स वगैरह. Mini skirts, हाँ मतलब. अरे ना I बाबा. don't, मुझे तो पता नहीं होता. ना वो LBDs भी होते हैं. वो क्या होता Little है? black dress. Yeah, I didn't know what are that. वो छोटी सी काली रंग की ड्रेस होती है, स्ट्रिप होते हैं यहाँ पे. Frocks. फ्रॉक्स काइंड ऑफ. अच्छा. माशाल्लाह लड़कियां क्या लगती हैं वो पहन के. आई हैव सीन जेंजीज इन दिस म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स वेयरिंग इट एंड रंग बिरंगे नेल पेंट्स लगा के. एंड वो क्या गाना आता है, प्रीटी लिटिल बेबी. So I thought you were going to sing Ami J Toma. Ami. If your aura had a texture, would it be velvet, sequins, or satin? अरे none of these. Why? Diamond chiffon. Oh wow, lovely. One thing you would say to your kid. To my kid? Yeah. बेटा जैसा जीवन जीना जियो, कोई लेकिन तरीका होना चाहिए. मैं फिर वही बात करूँगा. आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जिए, लेकिन किसी का दिल मत दुखाना. जैसा जीना जियो, किसी का दिल मत दुखाना. जो दिल दुखे हुए से आह निकलती है ना, वो कैसे नहीं होती. One thing you would say to the government of India. मेरा भारत महान, मेरी गवर्नमेंट भी महान. Be about homosexuality and LGBTQ rights. Something about that. हाथ जोड़. प्रधानमंत्री मोदी जी, आप हमारे भारत को इतना अग्रसर कर रहे हैं, हमारे कम्युनिटी के लिए इतना सोच रहे हैं, शायद सोच रहे हैं. और आई थिंक दैट सेक्शन 377 हैज़ बीन स्क्रेप्ड डाउन सिंस एजेस. बट देखो घर पे जो मशीन होती है ना, अगर उसमें ऑयलिंग ना हो तो वो रुक जाती है. तो थोड़ा सा ऑयल डालिए, थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाइए, है ना. हम चाहते हैं थोड़ी सी और नई ऊर्जा आए, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बने. मुझे मेरे भारत के संविधान पे पूर्णतः विश्वास है, मुझे मेरी गवर्नमेंट पे पूर्णतः विश्वास है. 18 साल से ऊपर हैं तो वोट भी देते हैं. गवर्नमेंट इज़ वर्किंग हार्ड, और बहुत बिजी रहती है ना पार्लियामेंट में. तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा समय एक LGBTQ बिल के लिए 0 आवर होता है ना, तो फिर 0 आवर में ये भी डिस्कस कर लिया करो कभी, है ना. नहीं है तो मुझे बुला लो कभी. आई लव टू कम कंगना रनौत की तरह. Lovely. So we also have, because I want to address those trollers. I think I have nothing against those trollers, but I want you to address. प्यारे हैं बच्चे, है ना. प्यारे हैं, नादान हैं. बेचारे फ्री हैं ना. नादान हैं, कभी Free सोचते हैं, कभी नहीं सोचते. So there are 3 comment sections which my team had taken out. So which are hideous comments. I want you to answer them very filterlessly. Okay. So एक किसी ने कमेंट लिखा था, दुनिया आदमी बाकी है या सारे औरत बनने में ही बिजी हो गए हैं. कि दुनिया में सिर्फ आदमी कोई बाकी है कि सब औरत बनने में ही बिजी हो गए. बेटा अपने पापा से तो पूछो कौन है. ओके. आदमी, अरे कैसी बातें करते हो बेटा. आदमी औरत, इससे ऊपर उठो. कौन है ये बच्चा, इसको बोलो पढ़ाई करे जाकर, है ना. Fair enough. पढ़ाई करो बेटा. Actually study. गंगू भाई, why don't you grow your hair? आई थिंक ये कई लोगों ने मेरे से प्रश्न किया है. कोशिश तो करी थी मैंने, है ना, बट ना मुझे ना इरिटेशन हो जाती है जब बाल यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं. फिर वो कहते हैं, वो नाई के पास जाओ तो वो कहता है कि आप इसकी सेटिंग करा लो. मैं सेटिंग कराता हूँ, फिर बाल छोटे हो जाते हैं. आपने कभी विग पहना है? नहीं, सरनेम के पीछे लगाया बस. सो एक बार पहना था, फोटो लगाई नहीं कभी, वो भी सफ़ेद था. We would want to see that picture for sure. वो है आई थिंक. Yeah, I would want to see that. I mean, definitely. But हाँ, you were saying कि हाँ, why don't you grow your hair because it irritates. वो इरिटेशन होता है तो है ना. फिर मैं सोचता हूँ कि बड़े लोग के बेटी लोग लंबा चूल, आमी तो किच्छु करे ना कि बाल लंबा हो जाता है तो फिर डिस्टर्बेंस करता है.
बट ठीक है, कई लोगों ने मुझे बोला है, इंशाल्लाह कभी Yeah, किसी maybe दिन, in the near क्या पता future. कभी बढ़ा लें। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, आप भागेश्वर जी जैसे लगते हैं। प्रणाम है उनको, बहुत अच्छे संत हैं भारत के, और मुझे कई लोगों ने ये बोला भी है, क्योंकि आई ऑल्सो वेयर काफ्तान्स Yeah. एंड लॉन्ग गार्ब्स लाइक हिम, इज अ वेरी स्वीट पर्सनैलिटी एंड आई एम हैप्पी दैट पीपल आर कंपेयरिंग मी टू हिम, बट मैं तो फिर वही बोलूँगा, संतों के चरणों के धूल बनना चाहूँगा, तो कंपैरिजन तो बाद में हो जाएगा, क्या पता शक्ल से लोग सोचते हो मिलता है, बट मैं चाहूँगा कि मेरा मस्तिष्क भी उनकी तरह हो जाए, तो धन्य हो जाऊँगा मैं। And I think that is to wrap up a very heartful episode. And we couldn't have had better conversations because I think they were so unfiltered. They were so pure as Sir's sari today. And I think people will learn a lot from this episode. What I want you guys to take out of this episode is just information. Don't judge. Don't have preconceived notions. Just listen to what he has to say and maybe try to implement that in your current lives. So this is what today's Heartful episode was all about. God bless you guys, and I want to thank Sir for coming onto my episode and coming onto my show. I think I couldn't have asked for something better than this. All the way from Jaipur, by the way. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर, एंड वो जज वाली बात मुझे अच्छी लगी, अगर जज हो तो एक दिन सुप्रीम कोर्ट में बैठ के देखो, पता चलेगा कितनी प्रॉब्लम्स होती कितनी हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं. है ना, तो डोंट सेंड योर जजमेंट्स अक्रॉस मी और एनीवेयर ऑन द इंस्टाग्राम, Judge when you are willing to be judged as well for the Exactly. same reason. है ना, रेसिप्रोकेशन तो So, होता ही है। reciprocation. I mean, if you are judging people, then be open to criticism फिर as मैं well. कुछ बोलता हूँ फिर मिर्ची लग जाएगी, Yeah, है वही तो, be open to फिर criticism. पानी तो मैं ला के दूंगा नहीं, है ना, ठीक है, बट धन्य है आप लोग कि हमें बुलाते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पैलेस वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच टू योर होल ब्यूटीफुल आर्टफुल टीम, My team has done everything. Yeah. but नहीं, everything, it's again a family, A collective, so thank you so much, Pranam.